Good evening. I consider it my absolute privilege today to be presenting the first in the series of COVID care webinar. This is brought to us by the School of Awakening and Empezar Wellness. The objective of bringing this series, which will be perhaps 7-8 talks over the period of the next few days, is to help us to accept COVID, the virus, and also all the other ramifications of it, to help us to accept it as our reality, and also to have an empowered and a knowledgeable response to it. So all these talks, short talks, very to the point, with renowned specialists, helping us with different aspects of COVID and how we can have a positive and more empowered response and how we can accept it as our reality today. So we have two special guests who I will introduce after the Hindi introduction. तो आज कोविड केयर का पहला कार्यक्रम है. ये कार्यक्रम स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस की मेहनत और उनकी प्रेरणा का नतीजा है. स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस, इनकी सोच ये थी कि कोविड जो है वायरस और उसके साथ जुड़ी जो सब 1-1.5 साल से हम कष्ट उठा रहे हैं, उस सच्चाई को किस तरह हम स्वीकार करें और एक सक्षम रूप से हम कैसे उसका सामना करें. तो ये जो 7-8 प्रोग्राम्स होंगे अगले कुछ दिनों में, ये सब इस पर ही ध्यान देंगे. अलग अलग स्पेशलिस्ट्स को हम बुलाएंगे, वो अपना एक प्रेजेंटेशन करेंगे, कुछ हमारे सवालों का जवाब देंगे, और हमें उम्मीद है कि इन सेशंस के बाद आपको एक पूरी तरह जानकारी होगी. डर जो है वो निकल जाएगा और उसकी जगह जो जानकारी है, जो समझदारी है, उससे हम सब पेश आ सकेंगे. तो इसके लिए मैं दोनों स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस बात का सोचा कि इस तरह का प्रोग्राम रखें, और आज ये पहला प्रोग्राम है. तो आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर वेंकट रमेश. ये भारत में भी और यूके में, इंग्लैंड में भी इनकी पढ़ाई हुई है, और अपोलो हॉस्पिटल्स में ये इन्फेक्शियस डिजीजेस के कंसल्टेंट हैं. तो इनको हम पहले इनका स्वागत करेंगे. वो हमें बताएंगे कि अगर कोविड हो जाता है तो उससे कैसे समझें और क्या कदम उठाएं. So our first guest today is Dr. Venkat Ramesh. We are indeed privileged to have him. He has done his medical studies in both India and UK, and today he is the consultant for infectious diseases in Apollo Hospitals, Hyderabad. So welcome, Dr. Ramesh. We are very eager to hear what you have to say to us. Dr. Venkat, thank you so much for being here with us. We have 2 questions for you. One of them is, if the person has been tested with the COVID and the test is positive, what are the next steps for them to follow? Right. So in almost all patients with COVID, the disease follows a more or less predictable course. Once somebody has symptoms, we count the date of symptom onset as day 1. And the complications usually arise in the 2nd week of illness. It can arise as early as day 5 after first symptom onset, and in rare cases, even as early as day 4. So in somebody who has tested positive, the first question that we try and understand is, try and answer is, does the patient require admission? In cases that are managed at home, most cases will resolve by themselves. Patients do not require any specific treatment. It is only symptomatic treatment that is required. For example, if somebody has a fever, we treat them with paracetamol.
If they have a cough, we use cough suppressants or antihistamines. If they have a cold or a runny nose or a sore throat, even that is treated symptomatically. Vitamin C and zinc have been used by physicians, but the evidence for them having a clinically significant benefit is not great. Having said that, there is no harm in really administering them. There is really no role for antibiotics or anti-parasitic agents such as ivermectin or antivirals given orally in cases of COVID. The data regarding their benefit is either is not there, and in some cases there is obvious evidence that they do not work. Now, when we assess a patient, we try and understand what is their degree of illness. Are they exhibiting any warning signs that necessitate admission into hospital? So the question is, what are these warning signs? In the first 4 or 5 days of illness, it is expected that patients will have high fever, feeling weak, malaise, fatigue, weakness, not feel like eating a lot, perhaps vomiting, slight cough. None of that is really worrying. What is worrying is when patients continue to have fevers beyond day 5. If they have a terrible cough which just does not get away, or a very severe cough, if they have difficulty in breathing, they would require admission into hospital. But certain other subtle signs may be seen. That is, if patients are so weak that they cannot get out of bed, they have difficulty in going to the washroom alone, all of these will require that they perhaps be admitted into hospital. The most important objective sign that we look for is the pulse oximetry reading, or the peripheral oxygen saturation. So a commonly used handheld oximeter, when it shows a saturation of 93 or less, that essentially means that the patient has severe disease, and that would definitely be one of the indications for hospitalization. So just to summarize, at any point in the patient's disease, if the saturation is less than 93, they require hospitalization, whether that is day 4 or day 8, or even further. Patients who have persisting fevers beyond day 5 after their symptoms start, persistent bad cough, severe weakness, fatigue, difficulty in breathing, or feeling short of breath when they go to the washroom, all of these are indications that they should contact a physician and need a hospitalization. So this is essentially how somebody who is tested positive should approach their own symptoms. Thank you so much. This is very, very important because we can just basically catch a normal cold, normal flu, right? And only Right. once you mentioned, Dr. Venkat, those symptoms, that Right. if the fever is above day number 5, if they feel the shortness of breath, if the Right. saturation of the oxygen in the blood is below 93, then Right. that's the time for us to go to the hospital and be hospitalized. And before that, we shouldn't actually panic, right? Is that also correct? Yes, absolutely. In the first 4 or 5 days of illness, it is very common to have these distressing symptoms: fever, body ache, joint ache, sore throat, cold, headache, loss of smell or taste, mild dry cough, not feeling like getting out of bed. But as long as the oxygen levels are normal, we're not really worried. It's only when the oxygen levels tend to go down we are worried, or if patients have progressive symptoms and worsening in the second week. Thank you so much, because I feel that will really help a lot of us who are going to listen to this
to today's webinar. I feel it will really help to really understand what we need to pay attention to and when we really need to start taking more care. I mean, we need to take care of our body all the time, right? But it is important to understand what to really pay attention to and not to worry, because we know that worry can cause unwarranted stress to the body and unfortunately can also affect our. Right. Another point that I would like to emphasize is that age and presence of comorbidities play a major role in how patients with COVID behave. We know that the Indian government has first vaccinated amongst the general population those above 60. That is because anybody above 60 has a significant risk of complications of COVID and even dying from COVID. After the age of 20, the risk of severe COVID, complications of COVID, and death from COVID increases by every decade. And the risk is also increased in all age groups in those who have comorbidities such as diabetes, blood pressure, a heart condition, prior stroke, or if they are immunosuppressed in any way. That is, if they are taking medications to decrease the immunity for whatever reason, whether that is because of they have a transplant or they have a condition that requires them to take immune suppressants such as steroids, or if they have some diseases like HIV or a primary immunodeficiency disease. So these are patients, again, who are prioritized in the initial phase, that is 45 to 60 with certain comorbidities. They were also prioritized for vaccination because the risk is obviously much higher in this age group. So in these patients, sometimes we have a lower threshold for admission. We may admit such patients when at a slightly less worse stage than, say, perhaps a healthy 25 or 30-year-old. Thank you so much, Dr. Venkat. It is a very informative stuff and very much needed for us to all understand what we need to pay attention to and who is really in the risk of being affected by the virus more. Thank you once again for your time and for all the information that you shared with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Ramesh. This was really informative. तो डॉक्टर रमेश ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया है कि कोविड जब होता है, ज्यादातर जो पहला हफ्ता है उसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसमें काफी सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, लोगों को बहुत मतलब एक सुस्ती आ जाती है, कुछ करने को मन नहीं होता है, कमजोरी होती है, खाने को मन नहीं होता है, कभी-कभी उल्टी भी हो सकती है और बुखार रहता है। पर ये सब कोविड के सिम्टम्स हैं और इनसे इतनी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तब है जब दूसरे हफ्ते में या 5वें दिन के बाद और कभी-कभी चौथे दिन के बाद भी अगर बुखार नहीं घट रहा, अगर ऐसी एक खराब किस्म की खांसी है जो कम ही नहीं हो रही और सबसे ज्यादा जरूरी जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो अगर 93 से नीचे जा रहे हैं, तो इस स्थिति में हमें बहुत सावधान हो जाना है और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि जो बाकी सिम्टम्स हैं जो पहले हफ्ते में होते हैं, जो पहले 5 दिन में होते हैं, वो नॉर्मल है। और अगर पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिडिटीज यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ ऐसे हार्ट का प्रॉब्लम या ऐसी कुछ भारी बातें ना हो और उनको बुखार वगैरह है, शरीर में दर्द है, आलस हो रही है, ठीक नहीं लग रहा, तो फिर भी ठीक है। पर अगर 5वें दिन के बाद ये फिर से चलता जा रहा है और दूसरे हफ्ते में चलता जा रहा है, तब जरूर हमको उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो 60 के ऊपर हैं उनको अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं तो बहुत सावधान रहना है। अगर कोई लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, मतलब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कुछ उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या ऐसी कुछ बातें हुई हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको एक सेफ्टी के कारण शायद पहले भी हॉस्पिटल डाला जाता है।
जो 20 साल से ऊपर हैं ज्यादातर वो सेफ रहते हैं। जो थोड़ा रिस्क बढ़ता है हर 10 साल की उम्र में, मतलब 20 से 30, 30 से 40 इस तरह बढ़ता है। पर ये ऑक्सीजन लेवल्स का और बुखार का और इस तरह की अगर खांसी हो, इन बातों का हमें खास ध्यान देना है। ये बातें हमें डॉक्टर रमेश ने समझाई। अब हमारे जो दूसरे आज के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोनिका रस्तोगी। तो डॉक्टर रमेश हमारे मेडिकल डॉक्टर थे। डॉक्टर मोनिका ने कई ऐसे सीख पाई है जिससे वो हमें अलग अलग क्षेत्र में मदद कर सकती है। आज वो हमें कुछ घर के नुस्खे बताएंगी कोविड से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सो आवर सेकंड गेस्ट टुडे is Dr. Monica Rastogi. She has done her diploma in natural therapy and yoga. She's a Reiki grandmaster, a medical practitioner of alternate medicines, Sujok therapy, dry needling, and auricular therapy. When I read all this, I was thinking that all the fingers of one hand certainly are not enough. I hope the second hand, with that, I'll manage. This is really a very, very impressive line of qualifications. And Dr. Monica today is going to focus on some home remedies to help us to increase our immunity in a very simple and easy way for COVID. So welcome, Dr. Monica. We look forward to hearing from you and we are very eager to do so. नमस्कार, स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस की तरफ से आज आपके लिए इतनी मेहनत करके और इतनी लगन से उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका विषय है कि हम होम रेमेडीज़ को यूज़ करके कैसे कोरोना को हरा सकते हैं। हमारे पास हमारी चीज़ें घर में इतनी सारी ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कोरोना को हरा सकते हैं। मैं स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस का आभार प्रकट करती हूँ जिनकी सहयोग से मैं आज आपके सामने इस विषय पे बात करने के लिए आई हूँ। जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनके फैमिली मेम्बर्स वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स या जिनको ये नहीं हुआ है, प्रिवेंशन चाहते हैं, वो अगर रेगुलर ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे और अगर कोई वायरस पकड़ा भी है तो बहुत जल्दी उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगी जो आप रेगुलर फॉलो करेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे, चार से 5 तुलसा जी की पत्ती डालेंगे हम इसके अंदर। ये सेंधा नमक है जिसको पिंक हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये 1/4 टीस्पून लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। ये हमारी हल्दी है, इसको टर्मरिक भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक लेंगे तो आप बहुत अच्छा है। अगर आपके आसपास ऑर्गेनिक हल्दी नहीं मिलती है तो आप बाज़ार से साबुत हल्दी लाके घर में भी इसको पीस सकते हैं। ये भी 1/4 टीस्पून ही इसमें डलेगा। इसके बाद 1/4 टीस्पून काले मिर्च ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। इसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पकाएंगे। जब ये पानी पक के 1/4 रह जाएगा, हम इसको वापस ग्लास में डाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद एक एक सिप करके इसको पीना है। इसको सिप करके पीने के आधे से 1 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये जब हम इसे इनटेक करेंगे, इसको पूरा आधा सा 1 घंटा लगता है। कोई भी अगर हमारा पैसेज ब्लॉक है या कोई भी जर्म्स है उसको किल करने में इसको इतना टाइम लगता ही है। इसके बाद हमारी दूसरी चीज़ है, हम पोटली बनाएंगे। उसके लिए हमें एक वाइट क्लॉथ चाहिए। ये कॉटन का बहुत पतला कपड़ा है। अगर हमें वाइट क्लॉथ मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर वाइट क्लॉथ नहीं मिल पाता है तो हम इसे किसी भी कलर का ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कैम्फर, कपूर।
तीसरी चीज लौंग, और चौथी चीज है ये अजवाइन। हम ये एक वाइट कपड़ा लिया, कॉटन का ये पतला सा क्लॉथ है, इसमें हमने कैम्फर यानी कपूर रखा थोड़ा सा, 4-5 लौंग रखेंगे इसके अंदर, 1 चम्मच भर के इसमें हमने अजवाइन डाला, और फिर इसका हमने एक पोटली बना लिया। ये पोटली हमारी रेडी हो गई है। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबके लिए ये अलग अलग पोटली बनेगी। इसको हर टाइम आप अपने पास रखिए या फिर अपनी पॉकेट में रखिए और इसको इस तरीके से स्मेल करते रहिए। जब हम इसको स्मेल करेंगे, जो कैम्फर है, कपूर है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखती है, और अगर कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करती है। तो अगर किसी को ब्रीथलेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम इमीडिएटली इसको स्मेल करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। कोल्ड हो गया है तो उसमें भी आराम करेगा। जैसे ही हमने इसको स्मेल किया, ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ जहाँ पे भी हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म्स एंटर किए हैं तो ये इसको मार देता है, अंदर से ख़त्म कर देता है। तो इसको हमें हर आधे 1 घंटे में स्मेल करना ही है, चाहे हम घर पे रहें या घर के बाहर रहें। तीसरी चीज़ है स्टीम। हम स्टीम 2 तरीके से ले सकते हैं। मार्केट में इलेक्ट्रिक स्टीमर अवेलेबल हैं, हम उसमें पानी डाल के स्टीम ले सकते हैं, या दूसरा एक भिगोना में पानी रखा, उसे बॉईल किया, बॉईल करने के बाद हमने अपने सर पे टॉवल करके उसको स्मेल किया। बट मेन चीज़ ये है, हमें वाटर में कुछ भी ऐड नहीं करना है, नॉर्मल वाटर की ही स्टीम लेनी है, वो मोर देन इनफ है, वो हमें उतना ही फ़ायदा करती है। और इसके बाद चौथी चीज़ है, अगर हम ये डिफ्यूज़र्स आते हैं, ये इलेक्ट्रिक भी आते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी आते हैं। टी लाइट हमने इसमें रखा, उसके बाद हम इसके ऊपर कैम्फर डाल देंगे और इसको पूरे दिन के लिए जला के रखेंगे। जहाँ पे भी, जिस रूम में अपने घर में हम इसे पूरा टाइम जला के रख सकते हैं, जब ये जलेगा इसकी स्मेल हमारे पूरे घर में फैल जाएगी। तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको जर्म्स फ्री और क्लीन करता है। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे भी कोई भी जर्म्स हैं, इसके जब हम इसको जलाएंगे, इसकी स्मेल जो होगी उससे वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और इसका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। चौथी एक चीज़ हम और कर सकते हैं, अगर हमें हाई फीवर है तो हम क्या करेंगे, एक बाउल में हमने पानी लिया, इसमें हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया है, इसमें हमारे फिंगर जो टिप्स हैं 10 के 10, इसको 10 मिनट्स के लिए हम डिप करके रख सकते हैं। इससे जितना मर्जी हाई फीवर हो एकदम से डाउन हो जाता है। इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि हमने अभी करा है तो 1 घंटे बाद नहीं कर सकते। हमें जब भी हाई फीवर हो रहा है हम इसको ऐसे अपने हाथ डिप करके बैठ सकते हैं और इससे हमें फीवर नीचे उतर जाएगा। तो ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जो इजीली हम कर सकते हैं और अब हमारे घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। पहला हमने काढ़ा बनाया, काढ़े में हमने 1 ग्लास पानी डाला, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, देन 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 4-5 पत्ते तुलसी जी के डाले, उसको पका के 1/4 करके एक-एक सिप करके पी लिया। सेकंड हमने पोटली बनाई, पोटली में हमने कपूर, लौंग और अजवाइन डाल के उसको स्मेल करना है। तीसरी चीज़ हमने स्टीम लेनी है। चौथा हमने डिफ्यूज़र में जला के रखना है कपूर सारे टाइम। और पांचवा कि अगर हमें फीवर है तो अपने हम ये सारे फिंगर टिप्स हैं, इन फिंगर टिप्स को नॉर्मल टैप वाटर में डिप करके रखेंगे तो फीवर डाउन हो जाएगा 10 मिनट्स के लिए। इसे हम दिन में जितनी मर्जी बार, 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोनिका जी, आपका हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सिंपल बातें हमें बताई हैं आपने। और क्या है ना, मुझे जब कोई ये
मतलब एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करता है ना, सामने रख के दिखाता है और सिर्फ बताता नहीं है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही मतलब बहुत प्रेम से ये कर रहे हैं, और आपको सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरी उम्मीद है कि आप फिर से कभी ना कभी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगी, और बाकी जो और बातें हमें बताएंगी जिससे हम सबका फायदा हो सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। पहला प्रोग्राम है और बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर। थैंक यू। सो वी कंक्लूड द प्रोग्राम हियर। I would like once more to thank School of Awakening and Empazar Wellness for thinking of and creating these little capsules, which these are like oral capsules, audible. We can hear them, we can see them, and we can benefit from them. And I'm sure that in the coming days, the other talks will also be as empowering and as knowledgeable. So thank you very much. मैं स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि हमारे लिए ये छोटे छोटे नुस्खे लाएं, छोटा छोटा कुछ समझ की बातें बताएं, ताकि धीरे धीरे जैसे हमारी समझ बढ़े, हमारा डर कम होता जाए। आगे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आप जरूर जुड़िए हमारे साथ, और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद।